Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back. This is the third lecture of kinematics. और ये तो फोर्थ लेक्चर हो गया, हाँ सॉरी, फोर्थ लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स. थर्ड लेक्चर में, पिछले लेक्चर में वी स्टडीड फ्री फॉल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्री फॉल मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, उसकी बात की थी. टुडे वी गोना स्टडी फ्री फॉल बट इन टू डायमेंशंस where the particle is thrown at an angle. अभी तक जो भी हम लोगों ने किया था वो वर्टिकल डायरेक्शन में किया था. Today we are going to study what is known as projectile motion. Very important. It's going to be used throughout physics. So I hope you're ready for the chapter. Let's go. So projectile motion. Projectile is just a name. ऐसे ही टाइम पास नाम है. When the particle is thrown at an angle. And the motion is under only gravity. That's why it's still called free fall. The motion is still called free fall, but like I had mentioned in the previous lecture, free fall का मतलब ये नहीं कि सिर्फ vertical होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ fall होता है, वो English literal meaning नहीं लेना. Free fall is the motion under gravity and only gravity, and this is also motion only under gravity, but we are throwing the object at an angle. तो ये जो मार्कर गया ऊपर से नीचे, I hope कैमरा में आया, पकड़ा मैंने. तो that motion, वो curve motion, फिर से करता हूँ. तो curve motion जो आया उसको हम एनालाइज करेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन, वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ फार इट विल लैंड, बहुत कुछ करेंगे. लेट्स टेक अ लुक. सो इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से पार्टिकल को u दिया जाए एंड लेट्स से वी आर थ्रोइंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन इट लैंड्स बैक at a point that is on the same horizontal level from the initial position. So इसको कभी कभार बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. So ground to ground projectile is basically the initial point and the landing point are on the same horizontal level. ठीक है, so let's say it is thrown at an angle theta. Alright. So what I'm going to do is I'm going to first choose a coordinate axis, and now because the motion is in two dimension, I have to choose x and y axis both. So let me choose x axis in this manner and y axis vertically upwards. ये मेरा choice है. Once again you can choose x axis to the left, you can choose y axis downwards, कैसे भी कर लो. But I'm choosing this way so that the quantities majority will all be positive, but it won't affect the final physics. ठीक है. So what do I want to find out? First thing I want to find out is the time of flight. So time of flight का मतलब कि after how much time is going to land back on the ground? How much time is it in air traveling? We are neglecting air resistance. Last lecture में भी ये बोला था मैंने. तो यहाँ पे भी we are neglecting air resistance. Okay, so time of flight पूछा गया. And we also find out कितना maximum height attain करता है during its motion. We also find out how far it lands. So वो सब करने के पहले we are going to first write down the velocity vector, initial velocity vector and the acceleration vector in terms of vector form में, मतलब I cap J cap form में. So मेरे पास ये u vector है जिसका speed u है, magnitude u है, and x और y components मुझे लिखना है, तो that is very straightforward. u cos theta I cap plus u sin theta j cap. I hope I don't have to tell you where this comes from. This you have studied it in vectors. Vectors making an angle theta with the x-axis. X component is u cos theta, y component is u sin theta. तो ये मैंने मेरा u vector लिखा हुआ. अच्छा, अब acceleration क्या है? Acceleration always g downwards. Always g downwards. Velocity कोई भी एंगल पे होने दो. But acceleration always g downwards. Downward मतलब कौन सा axis है? Negative y-axis. So can I write acceleration is minus g j cap, and this g is the magnitude of the acceleration. ठीक है, so g जो ये alphabet g है, that is a positive number, that's a magnitude. So minus j cap denotes the direction of the acceleration. Okay, तो ये मेरा initial velocity vector, acceleration vector, simple ही है. So I can write my equations of motion. Uniform acceleration ही है, देखो ये constant acceleration ही है. I can write my equation of motion in x direction as well as y direction. The good part is x direction में there is no acceleration. तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा.
जो भी चेंजेस होंगे वो y डायरेक्शन में होंगे. दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट दिस. सो फर्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए I had mentioned in the previous lecture, what do we do? What do we look at? We look at the displacement, because more often than not, we know the displacement. So, from the starting position, let's say this point is P. From the starting position to the point of landing, the displacement is along the x-axis. The path does not matter. Displacement is a straight vector from the initial position to the final position. So, the displacement is along the x-axis. उसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट मुझे डिस्प्लेसमेंट का दूसरा कंपोनेंट पता है. इफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कंप्लीटली अलोंग द एक्स एक्सिस, तो वाई कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो हो गया ना. दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गोइंग टू यूज. सो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट इज जीरो. सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, बिकॉज दैट इज द वन दैट हैज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज टाइम. सो जब मैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखता हूं, I have to take the y component of u and y component of acceleration, because I'm writing the y component of displacement. Should be 0. Capital T is my time of flight. हो गया. What is uy? u sin theta. What is ay? Minus g. Simple है. तो एक तो solution आएगा t equal to 0 as expected, because displacement 0 initial position पे भी है ना, तो equation will give us that value. Correct. And दूसरा solution क्या आएगा? देखो, एक t cancel कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस टू यू वाई बाई ए वाई. एंड ए वाई इज नथिंग बट माइनस जी. तो ये बन जाएगा टू यू वाई बाई जी. ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट भी कर दो. यू वाई को यू साइन थीटा लिख सकते हो. सो वी वुड लाइक टू रिमेंबर दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड थ्रू आउट फिजिक्स अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सो याद हो ही जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते. ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू वाई बाई जी. ऑल राइट. One more thing that I want to find out is the maximum height attained. ये जो maximum height attained है ना, वो भी मुझे निकालना है. तो जब प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर होगा? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये वेक्टर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा. करेक्ट. उसका y कंपोनेंट कितना है? देखो, y कंपोनेंट इज नथिंग बट द मैक्सिमम हाइट और द y कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? तो व्हेन आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, आई एम बेसिकली आस्किंग यू टू कैलकुलेट द y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर from the initial position to the final position. Final is now at the highest point. So highest point पे मुझे displacement का y component निकालना है. Highest point पर do I know anything? I know the direction of velocity. See, the velocity always has to be tangential to the curve. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में वो कर्व बनेगा, है ना, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पे द वेलोसिटी हैज टू बी हॉरिजॉन्टल. अगर वेलोसिटी हैड अ वाई कंपोनेंट, मतलब इफ द वेलोसिटी वर एट एन एंगल, तो और ऊपर जाएगा. तो मतलब हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पर है ही नहीं. व्हेन वी रीच द हाईएस्ट पॉइंट, द वेलोसिटी हैज टू बी हॉरिजॉन्टल. if it were at an angle, it will go up. So हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल. अब वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मुझे पता नहीं है, बट इफ द वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, तो कौन सा कंपोनेंट हम लोग को पता है? y कंपोनेंट, व्हिच इज अगेन 0. सो कैन आई से दैट द y कंपोनेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0. अब तो हो गया, y कंपोनेंट पता है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का तो पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, व्हिच इज द इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. थर्ड इक्वेशन करेक्ट. तो लिखो vy square is equal to uy squared plus 2ay sy. vy is 0, ay is minus g and sy is h. Substitute कर दो. What are you getting? You're getting h as uy squared by 2g. Basically u square sin squared theta by 2g.
Once again, we would like to remember this. तो ये दो चीजें हैं जो याद रखना है इस बोर्ड से, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट. And I hope you've understood how we derived both of them. The derivation is also important. Later on when we do inclined plane projectile वगैरह तो वहाँ पे derivation जो कर रहे हैं यहाँ पर we're going to follow the same derivation there as well. So it's important to understand everything that I've said on this board. एक बार देख लो अच्छी तरह से, कुछ है देख लो अच्छी तरह से और लिख लो आराम से. Now let's look at how far the projectile is going to land. तो मुझे ये लेंथ निकालना है, which is called the range. The horizontal displacement हो गया ना वो. What is that? Nothing but the horizontal displacement. From the initial to the final position. So displacement का component along the x-axis. Y component तो zero है ही. That is what we use to find time of flight. तो displacement का x component. If I use the second equation ut plus half at square. Acceleration का कोई x component है क्या? कोई I cap component है क्या? नहीं है. So I will only be ending up with ux into time of flight. Half at square तो गायब हो गया ना. Simple. हो गया. Time of flight तो हमने already निकाल दिया. Time of flight कितना निकला था? 2uy by g. So my range becomes, range को r से represent कर रहा हूँ, 2ux uy by g. Again something that we will remember, and then we can also substitute ux uy. कितना आ जाएगा? u cos theta into u sin theta. एंड इसको थोड़ा अगर ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ा होगा तो 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. So I can write my range, and this is how it's usually written. ठीक है, तो दोनों आई सजेस्ट दोनों फॉर्म याद रखो, ध्यान में रखो, बिकॉज बोथ फॉर्म्स आर यूजफुल. Especially when we get to relative motion in projectile one में, तो both forms are useful. So remember both of them. ठीक है, so range is u squared sin 2 theta divided by g. ठीक है, देख लो. अब रेंज के बारे में थोड़ा और डेप्थ में एनालाइज करते. द रेंज दैट वी गॉट वाज u squared sin 2 theta by g. Now, if I start throwing the balls or particles at different angles, but keeping the speed constant, so at which angle of projection will I get the maximum range? वो देखते हैं. So अगर मैंने speed को fix कर दिया, but I vary the angle, तो ये जो sin 2 थीटा वो वेरिएबल हो गया, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग फेंक रहे हैं. वी मेजर द रेंज, तो किस एंगल पर आएगा मैक्सिमम रेंज? sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. sin x cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, करेक्ट. सो फॉर मैक्सिमम रेंज under this condition where the speed is fixed, so if speed is fixed and I vary theta for the maximum range, I will have sin 2 theta should be equal to 1. मतलब 2 theta is 90 डिग्री हो गया ना, तो थीटा इज 45 डिग्री. सो 45 डिग्री एंगल पे द रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज्ड. और कितना होगा मैक्सिमम रेंज? साइन 2 थीटा को 1 रख दो. ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब इट शुड बी वेरी ऑब्वियस. साइन 2 थीटा 1 मतलब 2 थीटा इज 90 मतलब थीटा इज 45. ठीक है, सो 45 डिग्रीज पे द रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमाइज्ड. अच्छा, नाउ वन मोर थिंग अबाउट दिस रेंज. If I look at complementary angles, complementary मतलब उनका sum 90 डिग्री होता है. If I look at complementary angles, the range is going to be the same. तुम 0 से शुरू करो, then you go to 10 degrees, you go to 20 degrees, you go to 45 maximum range आएगा, you go to 70 डिग्री, तो 70 डिग्री पे जो रेंज होगा और 20 डिग्री पे जो रेंज होगा वो सेम होगा. 10 डिग्री पे जो रेंज होगा और 80 डिग्री पे जो रेंज होगा वो सेम होगा. उसको प्रूव भी कर लेते हैं. See, if I have एक थीटा पे प्रोजेक्ट किया गया है और एक 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया, दोनों का रेंज कंपेयर करते हैं. इसका तो रेंज पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बची. इसका रेंज कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा में ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी.
तो ये हो जाएगा u स्क्वायर्ड साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा। वंस अगेन ट्रिगो थोड़ा पता होना चाहिए, साइन ऑफ 180 माइनस x इज साइन x, so sin of 180 minus 2 theta is sin 2 theta. This you would have studied or you will study in the future in your JEE maths in trigo. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ in case you do not know this relation. x डिग्रीज में, हाँ तो ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। तो वही है, थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज इज सेम, सो लेट मी जस्ट राइट range is same for complementary angles of projection। ठीक है, हाइट अलग अलग होगा, एक में हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, दूसरे में हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, तो हाइट अलग अलग होगा। ठीक है, बट रेंज सेम होगा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलराइट, लिख सकते हो। Now let's talk about speed of the projectile at a given height h। अगर कहीं स्पीड निकालना हो तो कैसे करेंगे? Let's take a look। So एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, and let's say at a height h I want to find the speed of the particle। तो स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो स्पीड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम लोग? सी v वेक्टर इज vx I cap plus vy j cap, these are the x and y components of the velocity at some instant, at this instant। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, करेक्ट। वैसे u वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। अच्छा, नाउ is there any acceleration in the x direction? There is no acceleration because acceleration was only in the vertically downward direction। So can I say vx is equal to ux? कुछ velocity change ही नहीं होगा ना x component का, acceleration ही नहीं, तो velocity कैसे change होगा? So can I write vx को मैं ux substitute कर देता हूँ, और vy squared को I can write in terms of displacement, y component displacement using the third equation। So ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो उसका y कंपोनेंट h ही हो गया ना। सो कैन आई राइट vy स्क्वायर इज uy स्क्वायर्ड प्लस 2ay, ay इज माइनस g, डाउनवर्ड्स, मैंने अपवर्ड पॉजिटिव एक्सिस लिया तो डाउनवर्ड इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पॉजिटिव h। ये समझे मैंने क्या किया? आई हैव रिटन vy स्क्वायर को ये पूरा लिखा uy स्क्वायर प्लस 2as, a इज माइनस g, a मतलब y कंपोनेंट, 2ay sy is h and ay is minus g। अब ये क्या बन गया? ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, u स्क्वायर, तो u स्क्वायर माइनस 2gh, दिस इज द स्पीड फाइनली। ठीक है, तो ये वी वुड लाइक टू रिमेंबर, सिंपल है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो ये अपन याद रखेंगे। एक्चुअली जब फर्दर वी स्टडी 3 चैप्टर बाद, 2 या 3 चैप्टर बाद एनर्जी कंजर्वेशन, तो उससे ये बहुत इजीली आ जाएगा। वी वोंट हैव टू डू दिस, कंपोनेंट्स वगैरह की बात नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत इजी आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थे हमसे, बट दैट इज 2-3 चैप्टर्स लेटर। टिल देन वी वुड लाइक टू रिमेंबर इट दिस वे। एंड इवन इफ द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड ऐसे एंड वो नीचे जा रहा है, सपोज कोई हाइट से प्रोजेक्ट किया और वो नीचे जा रहा है, तो बेसिकली इट हैज डिसेंडेड हाइट h, यहाँ पे इट हैज असेंडेड, ऊपर गया हाइट h से, यहाँ पे वो हाइट h से नीचे गया फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल लेवल से अगर हाइट h से नीचे गया, कैन यू सी दैट v वुड बी इक्वल टू u स्क्वायर्ड प्लस 2gh स्क्वायर रूट ऑफ दैट। क्यों? बिकॉज अब डिस्प्लेसमेंट भी माइनस h हो गया ना, y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइनस h हो गया। इस सिचुएशन में प्लस h था, इस सिचुएशन में माइनस h है, तो माइनस g इंटू माइनस h हो जाएगा यहाँ पर। सिंपल है, अगर ऊपर गया तो स्पीड कम होगा, नीचे गया तो स्पीड बढ़ेगा, तो ऊपर गया तो माइनस रखो फाइनल एक्सप्रेशन में, नीचे गया तो प्लस रखो, ऐसे याद रखो। अल्टीमेटली जेई के लिए तो जब तुम जेई दोगे तब तक तो तुमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लिया होगा, एंड दीस इक्वेशंस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है,
One more thing, we can even find the angle that the velocity vector is making at any instant with the horizontal. Initial velocity vector is making an angle theta. Let me just draw the diagram here. The initial velocity vector is making an angle theta, and at some instant the final velocity vector is making, let's say, angle alpha. Final मतलब at some instant during the motion. तो मुझे ये अल्फा निकालना है. स्पीड मैंने निकाल दिया ऑलरेडी यहाँ पे. अगर मुझे स्पीड पता है तो अल्फा मैं कैसे निकालूं? Wonderful way of getting it is, a very easy way of getting it is using this equation. X components of the initial velocity and the final velocities are equal because there is no acceleration in the x component. And therefore, I can write x component of initial velocity कितना है? U cos theta. Final velocity v cos alpha. So, can I write v cos alpha? X component of final velocity should be equal to. तो यहाँ से you will be able to get alpha. मतलब वैल्यूज वगैरह कुछ पता होगा तो v पता चल जाएगा, u थीटा वगैरह दिया जाएगा, हाइट दिया जाएगा तो v पता चल जाएगा, वहां से cos अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा भी निकल जाएगा. ठीक है. सो ये बहुत यूजफुल रिलेशन है. वील यूज इट लेटर ऑन. जस्ट रिमेंबर दिस, वेरी नाइस यूजफुल रिलेशन. So I hope you understood how we calculate the speed. Let me just write the heading as speed of projectile. मार्कर का इंक कम हो रहा है यार. नया नया मार्कर खरीद रहा हूं मैं. कोई बताओ यार, अमेजोन से अच्छा मिलेगा क्या मार्कर? लोकल स्टेशनरी शॉप से खरीद रहा हूं तो 3-4 मार्कर तो इंक ही नहीं है उसमें. ठीक है. आई होप दिख रहा है तुमको. अरे नया मार्कर लिया यार मैंने. लिख लो. नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं. सो प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है and at an angle of 30 degrees to the horizontal. Find the time when the particle reaches height of 15 meters from the ground level. तो यहाँ पे g का वैल्यू 10 लेना है. So time निकालना है when the particle reaches the height of 15 meters. ठीक है. So मैं ये सॉल्व करता हूँ. 2 मेथड बताता हूँ. So पहला मेथड देखते हैं. नया मार्कर लेकर आया हूँ मैं. Let's see. I hope ये चले प्रॉपरली. Okay. So यार क्या यार, मार्कर में पानी भर के दे रहा लगता है. ओपनिंग अनदर मार्कर. देख लो यार, सब रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं. यही वीडियो मैं लेकर जाऊंगा, मेरा यूट्यूब चैनल भी बताऊंगा उसको जिससे खरीदा मैंने. सेकेंड मार्कर. हाँ ठीक है, अभी ये मार्कर ट्राई करता हूँ मैं. आई होप ये तो चले. हाँ फाइनली. ओके. सो 40 पे थ्रो किया गया है. इट विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन. कहीं तो वो 15 मीटर्स के हाइट पे पहुंचेगा एंड इट विल रीच दैट हाइट ट्वाइस. सो यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज मोर देन 15. नहीं तो ये क्वेश्चन का सेंस ही नहीं बनता. If the maximum height of the projectile reached is less than 15, तो फिर तो the answer to this is never, है ना. तो वो भी एक्चुअली सोल्यूशन दे देगा हमको. अगर if that is the case, सोल्यूशन दे देगा. And you can also check before solving the question, get the maximum height using the formula that we derived, use कर sin square theta by 2g. तो वो चेक कर लो कि ये 15 से ज़्यादा ही है, वो खुद चेक कर लो. Okay, so this is my 15 मीटर हाइट. मुझे निकालना है कितने टाइम पे यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा. 2 बार पहुंच रहा है ना, 1 ड्यूरिंग असेंट एंड 1 ड्यूरिंग डिसेंट. So 2 मेथड्स बताता हूँ. फर्स्ट मेथड. So method 1, I know 15 मीटर y axis के along displacement का component है, correct? Let me take x axis this way and let me take y axis upwards. So 15 meters is the y component of displacement because displacement is the straight vector from the origin to this point. उसका y component कितना हो गया? 15 meters. So can I use the second equation? Why? Because second equation में I have displacement as well as time. अच्छा. Now what is uy? 40 sin 30, u sin theta. sy कितना है? 15. uy कितना है?
40 साइन 30 मतलब 20 हो गया, साइन 30 इज हाफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट g डाउनवर्ड्स है ना, g को 10 ले लो तो g डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर लिया तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट -10 होगा। सो 20t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है टी में, क्वाड्रेटिक बन रहा है, दैट मेक्स सेंस बिकॉज क्वाड्रेटिक हैज टू सॉल्यूशंस एंड वी नीड टू सॉल्यूशंस फॉर टाइम बिकॉज दो इंस्टेंट्स पे द पार्टिकल इज गोइंग टू बी एट 15 मीटर्स हाइट। सो देख लो कितना आ जाएगा, इसको जस्ट 5 से डिवाइड कर देता हूँ एंड सब एक साइड पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 इज 0, तो इसको तो फैक्टराइज कर दो, सॉरी t माइनस 3 आएगा ये, t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1 शुड बी 0, तो सोल्यूशन आ जाएगा, यहीं पे नीचे लिख लेता हूँ। So at t equal to 1, the particle is going to be at this point, and at t equal to 3, particle is going to be at this point during the descent. So this is method 1. Simple है, just to make sure कि you choose the correct equation, which is also very simple to pick out because height दिया हुआ मतलब vertical component of displacement है, y component of displacement है, and time पूछा गया है, तो दोनों चीज एक ही equation में आते हैं, which is the second equation. अच्छा दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर इन वर्टिकल फ्री फॉल, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हम लोग ने किया था, दो मेथड्स किए थे जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक यूज करते हैं एक बिना क्वाड्रेटिक के करते हैं। सो सिमिलर थिंग, यू विल फाइंड दिस टू बी फेमिलियर टू व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। हाँ, सो सेकेंड मेथड में बेसिकली आई एम गोइंग टू राइट द टाइम टेकन इज द चेंज इन वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना है, g मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूं मैं, टाइम पॉजिटिव नंबर है तो बस मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, y कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ डिवाइड बाय y कंपोनेंट में एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो व्हेन द पार्टिकल रीचेस अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स, तो देखो इनिशियल y कंपोनेंट कितना है, uy कितना है 20, सिर्फ y कंपोनेंट की बात करो, तो 15 मीटर्स हाइट पे vy कितना हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन uy स्क्वायर प्लस 2ay sy, ay इज नेगेटिव sy इज पॉजिटिव, तो माइनस आ जाएगा 2 इंटू ay इज 10 इंटू sy इज 15 और uy कितना है 20, तो 400 माइनस ये बन गया 300 तो 100, तो vy कितना बन जाएगा 10, देख लो uy का सब्स्टिट्यूट कर दो 20, ठीक है। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 था, सिर्फ y कंपोनेंट देख रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी y कंपोनेंट कितना 10 था, तो चेंज कितना हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज कितना हुआ 10 डिवाइड बाय 10, सो एक टाइम आ गया मेरे पास 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 विच इज 1 सेकेंड, विच वी आर ऑल्सो गॉटन हियर। एंड दूसरा सिचुएशन सिमेट्रिकली वो 10 से नीचे आएगा व्हेन इट्स एट अ हाइट 15 मीटर्स, करेक्ट, जहाँ सेम लेवल पर है ना, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो एक टाइम असेंट एक टाइम डिसेंट, असेंट के वक्त 10 अपवर्ड्स था वेलोसिटी, डिसेंट के वक्त 10 डाउनवर्ड्स आएगा बाय सिमेट्रिक। सो इसमें कितना चेंज हुआ 20 अपवर्ड से 10 डाउनवर्ड, चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है 30, सो 30 कैसे आया वो समझ में आया, वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन है डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वही आ गया जो हम लोग को पहले भी आया था, मतलब ये मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से ऑब्वियसली सेम ही आंसर आना है, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड्स। यहाँ पे क्वाड्रेटिक यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक से कर लो। सो दोनों मेथड ही इजी है यार, ये मेथड शायद थोड़ा फास्टर हो जाएगा विथ टाइम बिकॉज यू विल बी एबल टू क्विकली राइट वी वाई, डायरेक्टली यहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, ये 20 है तो ओरली कैलकुलेट करो 20 स्क्वायर माइनस 2gh करके 10 आ जाएगा, चेंज का मैग्नीट्यूड इज 10 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन 10, तो 1 सेकेंड आ जाएगा ऐसे डायरेक्ट। और ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी कोई ज़्यादा इशू तो है नहीं। ओके, समझ में आ गया, लिख लो। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इट्स अ लिटिल सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट डिड एंड आई विल लाइक यू टू ट्राई इट आउट। थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, देखो इनिशियल वेलोसिटी अननोन है
Particle is projected at an angle of 30 degrees to the horizontal. Find the initial velocity or initial speed if particle is above a height of 20 meters for a duration of 2 seconds. इसका मतलब when the particle is traveling, तो कहीं तो 20 मीटर हाइट क्रॉस किया उसने. तो this motion from the basically the particle is above the 20 meter level for a duration of 2 seconds. तो ये जो portion of the journey है that is 2 seconds. ठीक है, I hope समझ में आ गया question. So just pause the video, try it out, then you can take a look at my solution. ठीक है, तो once again मैं दो methods बताता हूँ similar to what we did in the previous question. So यहाँ पर मुझे u नहीं पता है, but I know the displacement of y component is 20 meters and time से कुछ लेना देना है. तो again second equation use करता हूँ. I can write sy is uy t plus half ay t squared. sy is 20. मैं positive y axis upwards ले रहा हूँ, x axis to the right. uy कितना हो जाएगा? u sin 30 मतलब u by 2, sin 30 is half into t plus half ay is minus 10 है ना. तो let me write minus half into 10 into t squared. तो ये जो टाइम, ये जो t है that is the time when the particle is at exactly the 20 meter height. तो दो इंस्टेंट्स मिलेंगे like in the previous question. उनका जो डिफरेंस होगा that will be 2 seconds. ये समझ में आया? Because जो t है that is being measured from the initial instant. तो ये जर्नी के लिए कितना टाइम लगेगा? Let's say t1. ये जर्नी के लिए कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए? t2. तो उनका जो डिफरेंस है that is the journey here and that is what is given to us as 2 seconds. तो ये जो quadratic बन रहा है, देखो quadratic क्या बन रहा है? Let me write the quadratic as I'll have 10t squared minus ut plus 20 is 0. करेक्ट? सही लिख रहा हूँ. सॉरी प्लस 40 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशंस है, दो टाइम वैल्यूज निकलेंगे, उनका जो डिफरेंस है दैट इज 2 सेकंड. तो वो सॉल्व करके u आ जाएगा. तो इफ यू हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक equations in maths, तो you will know the formula for difference of roots. Difference of roots यहाँ पे लिख लेता हूँ. सही लिख रहा हूँ? रूट d by a, d is the discriminant, divided by a is the coefficient of t squared. तो discriminant कितना आ जाएगा? b squared minus 4ac, so u squared minus 4ac मतलब minus 1600 हो जाएगा, divided by a, and this should be equal to 2 seconds. समझ में आया? तो देखो कितना आ जाएगा, ये 200, ये सॉरी 20 बन जाएगा, उसका स्क्वायर 400 प्लस 1600 2000, so u स्क्वायर 2000 हो जाएगा. तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 2000, मतलब वो बन जाएगा 100 रूट 20, तो सो 10 रूट 20 रादर, तो 20 रूट 5. तो दिस विल बी योर आंसर. चेक कर लो, कैलकुलेशन तो आई थिंक सही किया. देखो सबको समझ में आया क्या? द डिफरेंस इन द रूट्स इज 2 seconds दिस टाइम. द टू रूट्स जो मिलेंगे दैट दोस विल द टू इंस्टेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन वेयर द पार्टिकल रीचेस द हाइट ऑफ 20 meters. उनका जो डिफरेंस है दैट विल बी द टाइम स्पैन ऑफ दिस जर्नी. ठीक है. हाँ, तो सेकंड मेथड देखते हैं. एक्चुअली यहीं पे कर लेता हूँ मैं. आई हैव सम स्पेस हियर. तो सेकंड मेथड में इट्स अ नाइस क्लेवर मेथड दैट since we are being asked the time for this journey, correct? We are being asked the time for this journey, the time span for which it is at a height above 20 meters. तो ये जर्नी को अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बाय इटसेल्फ ट्रीट कर लूं,
आई कैन ट्रीट दिस इटसेल्फ एज अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ऑफ इट्स ओन। तो अगर यहाँ पे स्पीड कुछ u है, तो लेट्स से यहाँ पर स्पीड v है। अब एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा मतलब uy है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट 2uy बाई जी फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो अगर यहाँ पे मेरे को vy पता चल गया, सो इसका इतने पोर्शन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कैन आई राइट दैट एज 2vy बाई जी should be equal to 2 seconds. 2 seconds becomes the time of flight for this portion. तो g के वैल्यू 10 डाल के vy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब vy को कहना राइट इट एज थर्ड इक्वेशन से रूट ऑफ uy स्क्वायर्ड प्लस 2ay sy should be equal to 10। तो uy स्क्वायर कितना होगा? uy कितना है? u sin 30 u by 2, तो वो बन जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ, तो u by 2 द होल स्क्वायर, ये uy बन गया, प्लस 2ay sy, ay is minus 10, sy is 20 है ना, ये शुड बी इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया ना मैंने दोनों साइड, तो ये 100 बन जाएगा राइट हैंड साइड पे। हो गया, बस अभी सॉल्व कर लो। ये 100 है, दिस विल बिकम 400, यहाँ पे जाके 500 इंटू 4 2000, सो वही आ गया, u स्क्वायर इज 2000। देखो, आई होप समझ में आ गया दोनों मेथड्स। दिस इज अ वेरी नाइस एलिगेंट मेथड, दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जैसे इक्वेशन लगाना सॉल्व करना। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव है, सो जस्ट कीप बोथ मेथड्स इन माइंड व्हेन यू एनकाउंटर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दिस मेथड इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन बाय स्प्लिटिंग, बाय जस्ट इमेजिनिंग कि इतना सेक्शन इज अ प्रोजेक्टाइल ऑफ इट्स ओन। ओके, लिख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। 20 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया गया एट 60 डिग्रीज, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। तो ड्यूरिंग द मोशन कहीं तो यहां पर 30 डिग्रीज बनाएगा वेलोसिटी, एंगल डिक्रीज होता रहेगा ना, यू कैन सी विद द हॉरिजॉन्टल एंगल विल कीप डिक्रीजिंग, एट द हाईएस्ट पॉइंट द एंगल विल बी 0। तो कहीं यहां पर 30 डिग्री बनाएगा एंड सिमेट्रिकली यहां पर भी 30 डिग्री बनाएगा वेलोसिटी वेक्टर। सो आई सजेस्ट यू ट्राई इट आउट। बस एक चीज बताता हूँ, वेक्टर मेक्स एन एंगल मतलब क्या? कोई वेक्टर अगर एंगल बना रहा है थीटा का, तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ? कोई वेक्टर अगर सपोज ए वेक्टर है, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, ये यूज करो तो इससे हो जाना चाहिए। एक्सप्रेस द वेलोसिटी का y कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। चलो कर लो, आगे नहीं बोलूंगा मैं। एंड जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई इट आउट एंड देन चेक माई सोल्यूशन। Okay, so first, at the first instant, the velocity vector is making 30 degrees above the horizontal. यहाँ पे दोनों केस अपने को लेना है, they have not said above or below, so we have to take both cases, especially in questions where you have more than one correct option and they will expect you to answer both time instants. So ठीक है, तो tan 30 can I write Vy by Vx? तो tan 30 को क्या लिख सकता हूँ? 1/√3। और Vy को क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज टाइम चाहिए ना मुझे, सो uy प्लस a/t और vx इक्वल टू ux, बिकॉज कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना है, u का वैल्यू, a का वैल्यू, और टाइम के लिए सॉल्व करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो जस्ट कर लेते एक बार। uy मतलब 20 sin 60 है कि नहीं? 20 sin 60 मतलब कितना हो जाएगा? 10√3। ay मतलब -10, and upward positive y axis लिया, डिवाइडेड बाई ux इज 20 cos 60 मतलब 10। हो गया, सिंपल है। ये आ जाएगा 10 10 10 सब कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल गेट द टाइम एज √3 माइनस 1/√3 सेकेंड्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई करना हो तो कितना रहेगा? 2/√3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन करेक्ट किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंट पे नाउ द वेक्टर इज बिलो द, कोई वेक्टर अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो इस एंगल को -30 डिग्री ले सकता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वेक्टर्स में भी पढ़ा है। तो tan ऑफ -30
इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई को फिर से ये लिख रहा हूँ यू वाई प्लस ए वाई टी डिवाइड बाई यू एक्स। तो tan माइनस 30 मतलब -1/√3। बस अब यही चीज करना है फिर से। राइट हैंड साइड पे तो वही आएगा, यू वाई इज 10√3, ए वाई इज -10, यू एक्स इज 10। हो गया। टाइम के लिए सॉल्व कर लो। तो टाइम के लिए सॉल्व करके तो कितना आएगा, √3 + 1/√3 seconds and this will become 4/√3 seconds. हो गया। So 2/√3 and 4/√3 are the two time instants when the velocity is going to make an angle of 30 degrees, one above the horizontal and one below the horizontal. More than one correct question आया, you have to tick both. ठीक है, तो ध्यान रखना वो। जब भी ऐसा पूछता है फाइंड द टाइम और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आता है तो थोड़ा सोचो कि दो इंस्टेंट्स तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन से भी इट शुड स्ट्राइक कि हाँ शायद दो इंस्टेंट्स हो सकते हैं। यूजुअली लोग जस्ट ये फर्स्ट वाला इंस्टेंट निकाल के खुश हो जाते हैं, बट दिस इंस्टेंट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, लिख लो। अब एक सिमिलर क्वेश्चन करते थ्रू व्हाट वी जस्ट डिड। Initial velocity u, angle is theta. So find the time after which the velocity is perpendicular to u vector. जो velocity of the projectile है, when will it become perpendicular to the initial velocity vector, वो पूछा गया। So कुछ ये इंस्टेंट पे होगा। ट्राई कर लो, इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन। ठीक है, सो द वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा एंड दिस टाइम इट हैज टू बी बिलो द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी वाज थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल, तो उसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। ये यू वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल के ऊपर एंगल थीटा पर है, और वी वेक्टर जो हो जाएगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो क्या पूछा हुआ टाइम। तो एक मेथड है, एक्चुअली दो मेथड्स यूज कर सकते हो यहाँ पर। जो एक मेथड है इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। आई नो वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल बिलो द हॉरिजॉन्टल। सो कैन आई राइट जो एंगल 90 माइनस थीटा है बिलो द हॉरिजॉन्टल, वो एक्चुअली नेगेटिव ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। शुड बी इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस tan of 90 minus theta is cot theta, so minus cot theta। vy कितना हो जाएगा, uy plus ayt divided by vx is nothing but ux, so minus cot theta, uy is u sin theta, ay is minus g, ux is u cos theta। तो देखो cot theta है, ये cos theta इधर आ जाएगा, तो minus u cos square theta by sin theta। I've just substituted cot theta as cos by sin। तो ये चीज़ राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। सॉल्व कर लो यार खुद ही, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। एक और मेथड है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, यूजिंग वेक्टर्स, बिकॉज वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यू वेक्टर, कैन आई राइट वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर इज 0 डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप शुड बी 0, है ना। दोनों को मैंने आई कैप जे कैप में लिख लिया, तो देखो क्या आ जाएगा, वी एक्स यू एक्स प्लस वी वाई यू वाई शुड बी 0। तो हाँ, तो वी एक्स यू एक्स प्लस वी वाई यू वाई, वी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कहाँ गया, वी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स, ए एक्स है ही नहीं ना, ये बन जाएगा यू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वी वाई को क्या लिख सकता हूँ, यू वाई माइनस जी टी, जैसे यहाँ पर लिखा था यू साइन थीटा माइनस जी टी, वो भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यू एक्स स्क्वायर इज यू कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू वाई इंटू यू वाई इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो यू स्क्वायर बन गया माइनस जी टी टाइम्स यू वाई मतलब यू साइन थीटा। तो देखो टाइम फिर से वही आएगा जो मेथड 1 से निकाला था। देखो समझ में आएगा, सिंपल है ये मेथड भी।
just I try to show as many approaches as I can to every problem so that you get a wide exposure to the variety of approaches जो दूसरे दूसरे क्वेश्चंस में लग सकते हैं. ठीक है, ठीक है, लिख लो. Now let's look at something called the equation of trajectory. So trajectory matlab is just a name for the path that the particle is taking. So the equation of a path का मतलब है a relation between the xy coordinates. अगर 3 dimension में होगा तो relation between x, y, z coordinates without any mention of time. तो मुझे time eliminate करना है और एक relation निकालना है between the x and y coordinates of the path of the curve taken by the particle. तो अपने को पता है कुछ तो ऐसे curve ले रहा है. When we throw the particle, when we throw this marker, तो ऐसे कोई curved path के along जा रहा है. तो उस curve का equation मतलब उसका x और y coordinates का relation क्या है? So let me take this as the x-axis, y-axis is upwards. Initial velocity u, ये angle theta. तो ये जो curve है ना, उसका I want to find the relation between x and y without any mention of time. So can I write that at any point the x coordinate, see x coordinate is the x component of a displacement. So x coordinate would be equal to ux into t. ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट. कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हाफ at स्क्वायर वाला टर्म तो आएगा नहीं. अच्छा, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल बी द y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट. तो y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब फिर से सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा इन ऑर्डर टू राइट इन टर्म्स ऑफ टाइम. तो कैन आई राइट y इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर, करेक्ट. अब ay मुझे पता है इज इक्वल टू minus g because acceleration y component is g downwards. Let me write y is equal to u/t minus half gt squared. अच्छा, now I want to find the relation between x and y by eliminating time. तो मैं time first equation से निकालता हूँ और second equation में substitute कर देता हूँ, time eliminate हो जाएगा and I'll get a relation between x and y. So let's take a look at that. I'll substitute t as x by ux and I'll substitute it in equation 2. So what will I get? Y is equal to uy into x by ux minus half gt square मतलब x by ux the whole square. ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया, बेसिकली रिलेशन बिटवीन x एंड y. एंड इसको थोड़ा सा और सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं. ux कैन आई राइट इट एज u cos थीटा, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. uy कैन आई राइट इट एज u sin थीटा. तो देखो ये tan थीटा बन जाएगा और इसको यहाँ पे u cos थीटा लिख रहा हूँ. सो gx स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 2u स्क्वायर्ड cos स्क्वायर थीटा. सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x and y. It's y in terms of x. And this is what is called as the equation of trajectory. You can remember this, usually याद ही रखते हैं सब लोग. But you can also derive it quickly by eliminating time. Now इस equation को थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखेंगे तो we have a quadratic in x, है कि नहीं? So if you've studied quadratic equations chapter in your JEE studies of maths, you will know that this represents a parabola. This represents a parabola with its mouth downwards, या मैथ्स में शायद कॉन्केव डाउनवर्ड्स ऐसा टर्म यूज करते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है. तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो द पैराबोला लुक्स दिस वे. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला विल लुक दिस वे. तो ये तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा या पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो द पैराबोला इज लुकिंग दिस वे. सो दिस कर्व इज कॉल्ड parabola when y is a quadratic in x. Okay, so that is what we wanted to find out. So a particle thrown at an angle under free fall conditions where only gravity is acting follows a parabolic path. Parabolic path मतलब the y coordinate is a quadratic in
x. Okay, इसमें we can also write this equation in terms of the range. मेरा range क्या था? See, my range was u square sin 2 theta by g तो था ही, but I can also write it in terms of ux and uy. Can I write it as 2 ux uy by g? यहीं से हम लोगों ने u square sin 2 theta by g derive किया था by substituting ux as u cos theta, uy as u sin theta. तो 2 sin theta cos theta becomes sin 2 theta. So I'm going to just write this. So because if I just look at this equation और x tan theta का मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो अगर मैंने x tan theta कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस जी एक्स बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कैन यू सी यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, बिकॉज टैन थीटा में साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे, वो एक कट जाएगा कॉस थीटा, बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, वही होगा ना 2 यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाय जी. तो नीचे पूरा आर बन गया, ये जो क्वांटिटी है वो पूरा रेंज बन गया. सो देखो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर. Just I hope you understood. Just substitute tan theta sin theta by cos theta. You'll see this appearing here. So we will like to remember both of these expressions, and we will see a couple of examples related to each of these examples, each of these equations. ठीक है, तो ये रेंज के टर्म्स में है और ये जनरल इक्वेशन है y in terms of x. ठीक है, लिख लो. Let's do a question on the equation of trajectory that we just studied. So मेरे पास एक हुप है. हुप मतलब क्या, बस एक रिंग है जिसके थ्रू बॉल फेंकना है अपने को. So we want to throw a ball which is at some distance x unknown, and let's say we want to throw it at 40 meter per second at 30 degrees, and the hoop has a height of 15 meters. So we want to throw it in such a manner, we want to stand and throw it in such a manner such that it goes through the hoop. तो कितने दूर पे हम लोग को खड़ा होके फेंकना चाहिए. Basically the question is asking find x. ठीक है, so in such questions equation of trajectory comes in handy because यहाँ पे मुझे टाइम का कुछ लेना देना नहीं है. Equation of trajectory is useful when we don't have to involve time. That's the one equation that it does not involve time and it only gives us a relation between x and y. So when I'm throwing this ball, वैसा कुछ जाएगा. So basically when the ball goes through the hoop, the y coordinate of the ball would be 15 and the x coordinate is unknown. So basically मुझे x के वैल्यू निकालना है and I can use the equation of trajectory because I know the y coordinate, I know the initial velocity and the angle, and g का वैल्यू 10 ले लो तो हो गया. बस अपने को equation of trajectory में substitute करना है and we have to solve for x. So if you want you can pause the video right now and do it. It's just a little bit of calculation and then you can check if you've gotten the correct answer. तो मैं करता हूँ. equation of trajectory क्या था, y is equal to x tan theta minus gx squared by 2u squared cos squared theta. तो y मतलब 15, x is unknown, tan theta कितना है 1 by root 3, gx squared so 10x squared divided by 2u squared मतलब कितना है 40 squared, cos squared 30 मतलब root 3 by 2 का squared मतलब 3 by 4, 3 by 4 ऊपर आ जाएगा, करेक्ट. ठीक है, 2u squared cos squared 3 by 4 ऊपर आएगा. ओके, सो अब ये क्वाड्रेटिक इन x बन गया ना, तो सॉल्व करेंगे एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई, यू शुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाई देयर इज अ क्वाड्रेटिक, बिकॉज दो सॉल्यूशन आएंगे x के एंड अभी तुम गेस कर सकते हो क्यों. वी कैन स्टैंड एट अ डिस्टेंस एंड थ्रो अ बॉल सच दैट इट गोस थ्रू द हुप while
ascending, or we can stand further back and throw the ball such that it goes through the hoop while descending. Correct? So that is why we'll get two values of x. So इसको बस सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. कितना आ जाएगा? 15 is, इसको जरा फिर से लिख लेता हूँ. 15 is x by root 3. ये हो जाएगा, ये 4 into 10 40, एक 40 कट गया नीचे, तो नीचे बचेगा 3 into 2 6 into 40 240. सो माइनस एक्स स्क्वायर्ड बाय 240. ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो देखो क्या आ जाएगा. एक्स स्क्वायर्ड 240 इंटू रूट 3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थ्रू आउट. ठीक है, सो माइनस 240x प्लस 15 इंटू 240 इंटू रूट 3. ठीक है, ये करेक्ट कर रहा हूँ क्या, देख लो जरा. आई थिंक सही क्या है ना. ओके नहीं, यहाँ पे एक रूट 3 भी आएगा ना. हाँ, अब करेक्ट क्या, आई मल्टीप्लाइड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 पूरे इक्वेशन को. ठीक है, अच्छा अब यार इसको सॉल्व करना है. मतलब मेरे को तो फैक्टराइजेशन कुछ ऑब्वियस तो नहीं दिख रहा है. आई जस्ट दूसरा फॉर्मूला से सॉल्व कर लेता हूँ. तो x कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर्ड, सॉरी माइनस बी, सो 240 प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac. सो माइनस 4ac 4 रूट 3 इंटू, ठीक है, डिवाइड बाय 2 रूट 3. देख लो फिर कितना आ जाएगा यार. ये 240 स्क्वायर्ड, ये 240 एक कॉमन ले लेता हूँ. सो 240 प्लस माइनस, एक तो ये 2, ये 120 हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 120 बाय रूट 3 मतलब 40 रूट 3. करेक्ट, ठीक. तो 40 रूट 3 लिख लेता हूँ. सब मैथ्स ही है यार. और 2 रूट 3 अंदर भी ले लेता हूँ. 2 रूट 3 अंदर लूंगा मतलब वो 12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा. तो एक 240 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय 12 मतलब 20 हो जाएगा. तो 20 कॉमन आ गया मेरे पास. और अंदर क्या बचेगा, 240 माइनस, बाकी क्या बचेगा, 4 इंटू 15 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3. तो 4 इंटू 15 60 इंटू 3 180. ठीक है, करेक्ट. तो ये हो जाएगा 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 मतलब 12 रूट 1200, एंड 1200 मतलब 10 रूट 12, एंड रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकता हूँ. 20 रूट 3 हो जाएंगे. दिस विल बिकम 60 रूट 3 एंड 20 रूट 3 meters. As expected, we have two values of x, once while ascending and once while वो descending भी throw कर सकते हैं ना. This will be 60 root 3 and this will be 20 root 3. तो ये दो वैल्यूज आ गए. तो इसमें फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. उसके बाद सारा मैथमेटिक्स ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है. However, if you do not want to solve quadratic equation, I'll show you another method without the use of equation of trajectory and without any need for quadratic equation. Very similar to what we did a few problems, a couple of problems earlier also, where we solved without, but I showed you two methods, एक with quadratic, एक without quadratic. वैसा ही है. I think last lecture में भी हम लोगों ने ऐसे किया था. ठीक है, तो ये लिखना तो पहले लिख लो, और फिर वो दूसरा मेथड भी बताता हूँ मैं. Alternate मेथड बताता हूँ, where we don't have to use quadratic. तो इनिशियल y कंपोनेंट कितना है, सिर्फ y कंपोनेंट वेलोसिटी का 40 sin 30 मतलब 20 हो जाएगा. करेक्ट. तो 15 मीटर्स हाई पे y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इस इंस्टेंट पे, रूट ऑफ यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay_sy. uy स्क्वायर कितना हो गया 400 और 20 स्क्वायर प्लस 2ay_sy. अब ay is -10 एंड sy is +15, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10 इंटू 15. थर्ड इक्वेशन यूज किया. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 300 10 हो जाएगा. करेक्ट है कि नहीं. तो एक सिचुएशन में
Now I'm going to use कि एक situation में when it is passing through the hoop during its ascent, the velocity goes from 20 upwards to 10 upwards. तो change in velocity का magnitude कितना हो गया? 10. तो can I say कि the time taken would be 10 divided by change in velocity is 10, उसका magnitude is 10 divided by acceleration in the y direction. So y direction में लिख रहा हूँ मैं 1 second. तो 1 second में कितना ट्रैवल किया आगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 40 cos 30 20 रूट 3 20 रूट 3 इंटू 1. तो ये मेरा एक आंसर हो गया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इंटू टाइम. एक्सेलरेशन तो है नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. और दूसरे केस में जब वो डिसेंड कर रहा है तो सी ड्यूरिंग असेंट vy was 10 upwards, during descent will be vy would be 10 downwards, correct? इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वाज 20, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? मैग्नीट्यूड y कंपोनेंट ओनली 30. तो चेंज इन वेलोसिटी का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इज 30. सो टाइम कितना लगेगा? 30 बाय एक्सेलरेशन 3 सेकंड्स. और इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी से, व्हिच इज 20 रूट 3. तो ये मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 60 रूट 3. सो दोनों सिचुएशंस अपने को पता चल गया. इसमें वी हैव टू फर्स्ट विजुअलाइज कि हाँ एक बार असेंट होगा एक बार डिसेंट होगा. दैट वी शुड नो. क्वाड्रेटिक वाले जो मेथड में द क्वाड्रेटिक इटसेल्फ टोल्ड अस कि दो सॉल्यूशंस है. यहाँ पे वी हैव टू फिजिकली थिंक कि हाँ दो सॉल्यूशंस होंगे. सबको समझ में आ गया कि दिस इज अ वे टू डू इट विदाउट क्वाड्रेटिक. द प्रीवियस वन वाज विद क्वाड्रेटिक, बट प्रीवियस वन डिडंट रिक्वायर टू मच थिंकिंग, जस्ट मैथमेटिक्स ज़्यादा था. यहाँ पे मैथमेटिक्स कम है बट थोड़ा सोचना ज़्यादा है. सो you should know both methods. The more methods you know, the more approaches your mind will know, and the more maturity you will gain as you keep studying physics and keep solving more and more problems. And that will help in the long run. ठीक है, लिख लो ये alternate method भी. Now let's do a pathfinder problem. So I have a wall and I have a particle or a ball thrown at an angle of 45 degrees. And यहाँ पे एक bulb है. At the point of landing there is a bulb. ठीक है. तो bulb is shining light. तो जैसे कि suppose the ball is here at some instant. तो wall पे shadow गिरेगा. ये लाइट रे आएगा बल्ब का, which will get blocked by the ball. तो यहां पर मेरे पास एक शैडो आ जाएगा बॉल का, करेक्ट? तो पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द शैडो इन टर्म्स ऑफ टाइम. शैडो का हाइट कैसे बढ़ेगा? विद टाइम t. और एंगल ऑफ इनिशियल एंगल 45 डिग्रीज दिया हुआ है एंड ये जो रेंज है वो L दिया हुआ है. तो दिस इज अ पाथफाइंडर प्रॉब्लम. तो पाथफाइंडर नाम से डरना नहीं है. वी सॉल्व्ड पाथफाइंडर प्रॉब्लम्स इन अ प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो. इट वाजंट दैट डिफिकल्ट बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एट दैट लेवल नाउ. द क्वेश्चंस दैट वी बीन डूइंग सो फार आर ऑल गुड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, सो यू आर यूज्ड टू इट. इसमें आई टुक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल बिकॉज आई वांटेड टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. क्या था मेरा सेकंड फॉर्म? x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r. ये था ना, r वॉज रेंज. तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर काफ़ी यूजफुल है बिकॉज इससे काफ़ी फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा. तो ये मैं कर लेता हूँ. सो पूछा गया कि मुझे हाइट ऑफ द शैडो चाहिए. ओके, तो सबसे पहले तो थीटा 45 डिग्रीज दिया गया क्वेश्चन में, तो tan थीटा 1 हो गया. तो कैन आई राइट y इज इक्वल टू x इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, r माइनस एक्स डिवाइड बाय r. अच्छा, अब r मतलब यहाँ पर l हो जाएगा, है ना? मेरे सिचुएशन में r इज कैपिटल L, रेंज. लेट मी जस्ट राइट दैट. ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ फॉर्म है x एंड l माइनस एक्स, मतलब x एंड r माइनस एक्स, तो थोड़ा सोचना है, कुछ शायद ऐसा कुछ बनेगा. जब बॉल यहां पर है तो ये x बन गया, ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया, ये l माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? ज्योमेट्रिकली ये जो दो टर्म्स है x एंड l माइनस एक्स, वो ज्योमेट्रिकली दोस आर दीस लेंथ्स, करेक्ट? ओके, नाउ व्हाट डू आई वांट?
आई वॉन्ट दिस हाइट, तो कुछ ज्योमेट्री है, कुछ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दिख रहा है. कैन आई राइट L minus x by y should be equal to पूरा L by h, है ना? Yeah, basically you can also say I have written tan of this angle. Tan of this angle is y by L minus x, and in the bigger triangle is h divided by this entire L. तो यहां से मुझे h आ जाएगा. देखो h कितना आ रहा है, y divided by L minus y into L. अच्छा, y divided by सॉरी L minus x होना चाहिए. हाँ, अच्छा, y divided by L minus x कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर? है ना, यहाँ पर देखो कितना है, y divided by L minus x कितना है, x by L, correct? So basically h becomes equal to x by L times L. So h becomes equal to x. तो जितना ये x का वैल्यू है उतना ही ये शैडो का हाइट है, और x का वैल्यू तो अपने को पता है, दैट इज नथिंग बट, अगर स्पीड u मान लूं मैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, u cos 45 इंटू t. तो यही मेरा हाइट भी हो गया. बस एक चीज है कि u is not given in the question, but I can find out u because I know the range capital L. I can write L is u square sin 2 theta, theta is 45 degrees, so sin 2 theta becomes 1. तो u का वैल्यू बन गया रूट जी एल. सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो h का वैल्यू हो जाएगा रूट जी एल बाई 2 टाइम्स t. So that's your answer. So I picked this question because I wanted to show you an application of this equation. This equation is useful when you get terms like x and L minus x, ऐसा कुछ मिलेगा, या जहाँ पर मतलब रेंज पता है या फिर रेंज यूज कर सकते हैं इन द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, देन इट इज यूजफुल. एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर ये एप्लीकेबल है. यू कैन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन नाउ. बट दीज आर ऑल गुड लेवल क्वेश्चंस. देखो, अगर तुम सोचोगे कि फर्स्ट टाइम मुझे कैसे स्ट्राइक होगा, नहीं स्ट्राइक होगा तुमको. बट if a similar question comes in the exam, if you are able to do that, that is our goal. ये जो भी हम लोग questions कर रहे हैं, अगर first time नहीं हो रहा है तुमसे, that is okay, because this is a learning process. ठीक है, तो डरना नहीं है अगर नहीं हो रहा है तो. This is all a learning process, and just make sure you understand every step. तो blindly मत copy करो. अगर copy कर रहे हो तो अच्छे तरह से लिख के copy करो, मतलब proper समझ के copy करो every step. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो. तो एक और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन द रेंज वाला फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो देखो, एक प्रोजेक्टाइल है एंड दिस इज अ स्केलिंग ट्रायंगल विद एंगल्स अल्फा एंड बीटा हियर. फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट द प्रोजेक्टाइल जस्ट ग्रेजेस द वर्टेक्स, द टॉप वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना मुझे, tan थीटा निकालोगे तो दैट विल बी गुड इनफ. So think in terms of the range wala formula of equation of trajectory that we just used in the previous question, and try it out. Then you can take a look at the solution. ठीक है, so I have, suppose I mark this as y, and let's say ये x है, तो ये बन जाएगा r minus x, where r is the range of the projectile. तो and ये जो एंगल थीटा है वो मुझे चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो क्या राइट y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर. सो y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू r माइनस एक्स बाय आर. एंड सो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा देखो, tan थीटा को कहना राइट इट एज आर वाई डिवाइडेड बाय x इंटू आर माइनस एक्स. ठीक है, अच्छा, अब जो है can I express these terms in alpha and beta? सोचो, यहाँ पे tan अल्फा कितना हो गया y by x, और tan बीटा कितना हो गया y डिवाइड बाय r माइनस एक्स. तो देखो, ये दिख रहा है y by x is tan अल्फा एंड y डिवाइड बाय r माइनस एक्स is tan बीटा. बट यहाँ पे r is not given to us. Can I write the numerator? थोड़ा सा mathematics. Can I write numerator as x plus correct?
ऊपर देखो क्या लिखा है ना, तो देखो ये टर्म x डिवाइड बाय x ओवर r माइनस एक्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइड बाय r माइनस एक्स प्लस r माइनस एक्स डिवाइड बाय दिस, वो कट जाएगा, बचेगा y बाय x. तो व्हाट इज y बाय r माइनस एक्स, y डिवाइड बाय r माइनस एक्स इज tan बीटा, y डिवाइडेड बाय x इज tan अल्फा. तो हो गया. So tan theta becomes equal to tan alpha plus tan beta, and this is your answer. So थोड़ा सा mathematical relation था in order to figure out alpha and beta के terms में. So this is a good level question. These are all like I would say JEE advanced level questions. This one, the previous one, these are all, previous one was Pathfinder. So they're all JEE advanced good level questions. So I hope you're able to understand the solution. Even if you're not able to solve them on your own, that is perfectly fine, because ये first real chapter of physics पढ़ रहे हो तुम, kinematics. By the time you study the other chapters, mechanics, इतना maturity आते जाएगा. ठीक है, तो लिख लो. That's it for today. See you at the top. Good night.